The session is titled Stand-Up Comedy by Bio Zafar. An introduction by Ali Salim. And maintain silence. We are about to begin our session, Stand-Up Comedy by Bio Zafar. It is being presented by Mr. Ali Salim. Ali Salim is a Pakistani television host, actor, scriptwriter, and impressionist. He first came to public notice with his impersonations of late Prime Minister Benazir Bhutto. He gained exceptional popularity playing the cross-dressing Begum Nawazish Ali on various television channels. Such was the popularity of his late night show that he landed his own talk show on an Indian channel, 9X. Ali Salim was also a contestant on the reality show Bigg Boss on India's Colors channel. Ali has performed in all media of the performing arts. He is a member of Grips Theatre Karachi since 1998 and has entertained stage audiences all across Pakistan, Dubai, India, and the UK. He has also done a film, Love Mein Gum, in Pakistan. Currently, Ali is working on his first book to be published by the French publishers. He also plans to launch his own morning show on a Pakistani satellite channel. Mr. Ali Salim. Hello, thank you so much, everybody, and it's great to see all you people here at Karachi Literature Festival. And believe me, this is why I love Karachi so much, because I think us Karachiites, like to participate, like to go out, like to, enjoy events like this and make them successful. So when I was asked to introduce Bio Auntie, क्योंकि हमारी तो वो auntie हैं, Bio Auntie, and she's somebody I love immensely. I am very, very fond of her, I think, and I'm a huge fan of hers. But I'll, share with you how I met Bio Auntie for the first time. When I just started acting back in 1998, I wanted, and then we came up with this idea of doing Begum Nawazish Ali, the character. तो इमरान असलम साहब जो प्रेसिडेंट जियो टेलीविजन नेटवर्क भी हैं और वो ड्रामे भी लिखते हैं और हम उन्हीं के ड्रामों में काम किया करते थे. तो इमरान मुझे हर वक्त कहा करते थे कि अली, you should go and meet Bio. And I asked him, I said, who is Bio? And he said, well, you've got to meet her to know who she is. She's one of the most talented, people in Pakistan. She creates characters. She does these, impeccable impersonations. And she has so many characters to offer, so many different roles that she does. And he says that she has a great sense of humor, so you should go and meet her. उसके बाद जिससे भी जिक्र हुआ Bio Auntie का, सभी ने कहा कि भाई बेगम नवाजिश अली शुरू करना है, तो Bio Zafar is the right person to go because she'll give you the right kind of advice on how to take that character forward. तो पहली दफा हम गए थे Bio Auntie से मिलने बेगम नवाजिश अली के हवाले से, and when I met her, it was like love at first sight. फिर उनके बच्चों से भी दोस्ती हो गई बहुत अच्छी, ज़ियाद से और ज़ारा से. And, over the last few years, then, after I started my show, Bio Auntie started a show on TV1, Bar Bar Bio, आप लोगों ने यकीनन देखा होगा. फिर हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम मिलकर कुछ करें. मेरी ख्वाहिश थी कि मैं Bio Auntie के साथ मिलकर कुछ करूं in collaboration with her, but somehow the other, अभी तक वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है. लेकिन मुझे यकीन है और उम्मीद है that soon Bio Auntie and I will do something together. For now, let me present to you Bio Rana Zafar. आज जो आगाज होने वाला है वो इनके सबसे फेमस कैरेक्टर फरखंदा वानबी से होने वाला है. उसके बाद हमारी मुलाकात जो है वो मुस्तकीम धोबी हैं फ्रॉम किरांची, उनसे भी होगी. घसीटन हैं जो लास्ट रेलिक ऑफ गरारा ईरा इन सहारनपुर. फिर हमारे पास आज शब्बो एंड वीडो हैं, बट एंड बग्गो हैं जो कश्मीरी हैं. तो सब लोगों से मिलते हैं Bio Rana Zafar. बिग हैंड फॉर हर. हेलो, बस करें, ओवर ना हो जाए. व्यूअर्स, आई नो आप कितने ना एक्साइट्स और दिल ना ये माइक्रोफोन खराब हुआ. क्या आपको पता है ना कि इतनी फेमस सेलिब्रिटी रोज डेली बेसिस पे तो आपके सामने नहीं आ सकती ना.
वीवर आपको कि मुझे पता है आप पल्सेटिंग्स हो रही है और स्वेटिंग्स हो रही हैं और आपको एक को तो कार्डियक्स भी हो रहा है ना, क्योंकि डेली बेसिस पे तो आप इतनी सेलिब्रिटी कभी देख भी नहीं सकते ना। मगर मैं आपको बताऊं, इतनी फेमस होने की ना बड़ी सख्त सजा है। पूछें क्या? बस इतना भी ना पूछें। सजा ये है कि जितने मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं ना, जल बुन के खाक हुए में, जेलस हुए में। मेरी फ्रेंड जो शबाना है, उसने तो ना अपना प्राइवेट बंसन बर्नर बेडरूम में रखा हुआ है। सारी शाम जैसे मैं फेमस और पॉपुलर होती है ना, अमेजिंग अमेजिंग होना में, तो वो चढ़ जाती है अपने बंसन बर्नर पे, सुलगती रहती है सारी शाम। व्यूअर्स, अगर आप बुढ़ा कुकर चढ़ा दें उस बंसन बर्नर पे ना, तो वो भी गल जाएगा। तो इतनी वो जेलस है कि जो मैं करती हूँ मेरी कॉपी कैट करती है। अब आई लव्स दैट द कुकिंग्स। और आपको पता है मेरे हस्बैंड जो उनसे है ना, ही इज दैट मल्टी इंटरनेशनल में काम करते हैं ना, तो मैं ना वेस्टर्न खाने बनाती हूँ। जैसे ग्रुरुरी चीज है एक, तो कहने लगी बाजी ये ग्रुरुरी चीज क्या होती है? मैंने कहा तुम कभी देसी पनीर से आगे गई नहीं, हाउ डू यू नो व्हाट इज ग्रुरुरी चीज? This mic is terrible. I know, why don't you use this one? Hello, is this better? हाँ, much better. उससे तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो ना मैंने कहा कि ना तुम कभी how you know what is the गुरुरुरी चीज ना, तो उसने खैर क्या किया, डिनर कर दिया। पता नहीं कौन से गड़े मुर्दों को इनवाइट्स किया, who she knows, और वहाँ पर उसने अपने सारे डिशेस पे नाम लिखे, नवाबजादे कोफ्ते, साहिबजादी बिरयानी। तो मैंने कहा फिर लॉर्ड कद्दू और लेडी लौकी भी लिख लो। तो कहने लगी आप तो हमेशा इस तरह की बातें करती हैं। मैं बताऊं व्यूअर्स, वो जो नवाबजादे कोफ्ते थे वो इतने पथरीले कि मैंने नाइफ से कटिंग्स की ना तो छाल मार के नेबर की कोट की जेब में जा गिरा। आप यकीन माने ड्राइवरों ने ना और जितने चौकीदार थे सारे उन्हें खाना वापस कर दिया। भाई वाई दे शुड ब्रेक देयर टीथ ऑन दोज फलादी गोलास। खैर बहरहाल वो सारे बाकी सारा खाना फलूद। मैंने कहा फिटे मुंह दफा हो जाओ अपने बंसन बर्नर पे बैठ के सड़ो, क्लैपिंग्स करें, चलें, बस करें, ओवर ना हो जाए, बस। अच्छा व्यूअर्स, आपको पता है ना कि मैं तो अमेरिका ऐसे जा रही हूँ जैसे नवाब शाह सक्कर और टंडो जाम को जाता है ना, कभी LA में, कभी DC में, कभी NYC में, कभी KFC में। क्यों हंस रहे हैं? मैंने कोई बात कर दी ऐसी है? ज़्यादा टीदिंग्स ना दिखाएं, अपनी आराम से रहें, ओवर ना हो जाए। तो ना जब मैं न्यूयॉर्क के JKFC एयरपोर्ट पे उतरी हूँ ना, तो मेरा मोबाइल बज पड़ा। अब आपको पता है ना, आप तो आम लोग हैं, आप तो जब बाहर जाते हैं तो आपकी सिम होती है। हम लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं हमारी रोमिंग्स पे होती है ना, वी हैव ऑलवेज गॉट द टेलीफोन्स ऑन द रोमिंग्स ना। तो रोमिंग्स पे थी, तो मैंने कहा तुम इतनी कंजूस मक्खी चूस हो, हाउ यू आर कॉलिंग मी अमेरिका? कहने लगी बाजी मैं आपके बारे में वरीड्स हूँ ना, क्योंकि इतने हुज द हु होंगे मैन द हैटन में, व्हाट यू विल बी द वेयरिंग्स कि आप पूरी पर हैं। मैंने कहा तुम्हें पता ना मैं तो हमेशा डिजाइनर वेयर पहनती हूँ, कभी YSL, कभी HSY, कभी KFC। फिर हंस रहे हैं। तो कहने लगी बाजी आप ना जीन पैंट में ना जरा प्लम्प्स लगेंगी। हाय, मुझे तो कार्डियक्स हो गया। मैंने कहा मैं इतनी योगे करके और डाइटें कर करके मेरा फिगर है मार्लिन की तरह। होल द वर्ल्ड कहता है लेडी फरखंदा योर फिगर इज लाइक द मार्लिन। तो कहने लगी मार्लिन कौन है? तो मैंने कहा तुम मुसरत शाहीन से आगे तो कभी गई नहीं, हाउ यू नो व्हाट इज मार्लिन? और व्यूअर्स आप तो सारे हुज द हु है ना, वो जमील देलवी साहब बैठे हैं, हुज द हु देखें सारे कितने हैंडसम है, स्मार्ट आदमी, सब मुड़ के देखें उनको। हाँ, तो उनको तो पता है ना हु इज द मार्लिन। जो पता है गटर पे व्हाइट चड्डी फ्रॉक में खड़ी होती है, वाह उससे जा मार्लिन डी मैनरोज। हाँ, क्लैपिंग्स करें, चलें। तो मैंने कहा प्लाम्प्स होगी तुम, दफा हो फिटे मुंह। तो मेरी बर्थडे हुई ना, तो फोन बजा, कहने लगी हेलो फरखंदा बाजी। मैंने कहा बाजी कोई पूछे, मैं जब पैदा हुई थी शी वॉज डूइंग मैट्रिक, शी इज गॉट ओडेस टू कॉल मी बाजी। मैंने कहा तुम्हारी ओडेस है, बाजी होगी तुम। कहने लगी बाजी आपने मुझे बर्थडे पे बुलाया, क्यों नहीं? शोर ना करें वहां पर, खटर पटर बंद करें। सेलिब्रिटीज के सामने ये लोग करते हैं ऐसे, चुप कराएं इनको, सारे बोले हाँ बस करें, ओवर ना करें। हाँ, तो फिर
फिर क्या हुआ कि ना ये कहने लगी कि आपने मुझे इनवाइट्स नहीं किया। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने कैफे फ्लोरिंग्स में ना बुक किया हुआ टेबल, उस टेबल पे सारे वेस्टर्न टाइप के लोग आ रहे हैं, सबने चड्डी फ्रॉक और जीन पैंटें पहनी हुई है, वाइन्स पी रहे हैं, तो तुम कैसे फिट इन करोगी? तुम्हारी हस्बैंड की 2 किलो की तो दाढ़ी है और तुम्हारी काली कोनी नजर आ जाए तो फतवे लहरा रहे होते हैं वहां में। तो कहने लगी बाजी आप ना मेरी फीलिंग्स को हर्ट करती। मैंने कहा जा ले अपनी फीलिंग्स और चढ़ जा बंसन बर्नर पे, फिटे मुंह क्लैपिंग्स करें बस। Thank you. I must say a very specific thing today. My illustrious brother-in-law is here, Javed Jabbar साहब। हम लोग कश्मीरी हैं, with a big emphasis, racist emphasis on गोरापन। And my sister was the beautiful gori of the family. तो जब ये रिश्ता आया तो मेरी दादी को तो कार्डियक्स हो गए ना। She took one look at JJ. JJ was lanky, long legs and rather samla. So she looked at him, she said, "Hi, hi, aate latta hi latta te utte rang pakka," she said. She said, "Edi beo de naal kara de." Nikki di na surat na sirat, she said. So anyway, I've got various characters. I've got a Kashmiri couple called Butt and Baggo. Anyone by the name of Butt here? Come on, own up. Any Kashmiris? Kashmiris? Some gora chitta faces somewhere? Jamil is chamkoing, but that's because it's French connection. Kashmiri nahi hai wo. Sab mud ke dekhen Jamil ko. He's my best friend. You must have a look at him. Okay. Handsome type of the person. Not person, but person. So how many Memons here? Okay, I've got some lovely Memon jokes too. Pathans? Okay. So now I'll start with a Memon. I have a couple called Jubeda and Rajak. So when Jubeda and Rajak newly got married, so now he's complaining to Ghaffar Bhai. Hey Ghaffar Bhai, ye Jubeda hai na fajul kharach hai bahut. शादी के बाद रोजाना मेरे को 100 मांगती, 200 मांगती, 400, 1000 तक मांगती है। So he says, इतने पैसे के साथ करती क्या है? ये मेरे को क्या पता, मैं देता थोड़ी हूँ। So one day Rajak Bhai gives blood to an Arab, and the Arab is very happy. Wallah lazim, I will give you everything in the world. I will give you sayyara, I will give you tayyara, I will give you Rolex, everything. So Rajak Bhai can't believe it. For blood, he's got all this. So then Ghaffar Bhai is very jealous. Hey Rajak, tere ko to mal matola mil gaya na. Ab kya karega? Intezar kar raha hu, phir se bimar ho jaye na. So anyway, again he falls ill. And he again gives him blood. This time he gets only 1 box of laddus. He's very upset. Hey, is dafa to isne laddu diye, hey, kai ko diye laddu? So the Arab says, now wallah lazim, I have got Memon blood. Okay, and one more for Rajak Bhai. He goes to the Darzi. Hey Darji, पटलून कितने में बनाएगा? 150। I don't know why, but the tailor is Punjabi. 150 बना देंगा। ये नेकर 50 बन जाएंगे। अच्छा दर्जी तू ऐसा कर, तू नेकर बना, जमीन तक उसकी लंबाई रख ले। Then here's an Punjabi and Pathan joke mixed. The Pathan says to the Punjabi, "Khoche 5 जानवर का नाम बताओ जो पानी में रहता है." So the Punjabi says, "ओ कोई गाली नहीं, डड्डू." "खोचे तुम एक बताया है, 5 और 4 और बताओ." "कोई गाली नहीं, डड्डू दा प्यो, डड्डू दी मां, डड्डू दा पैंट, डड्डू दा मसेर, डड्डू दा मलेर." "खोचे हमने 5 पूछा, तुमने 6 बचाए, शाबाश." This Pathan goes to rob a bank. So he puts the gun to the teller. "खोचे सारा पैसा निकालो." So he's scared. He gives him 20 lakhs. "अब ये वापस लो और हमारा अकाउंट खोलो," he says.
One more Pathan coming up for all these gora gora chitta chitta Pathans who are chamkoing, I can see. So this Pathan names his son Amrika. So the other Pathan comes and says, "Khoche, khanzir ka bachcha tum Amrika हमारा दुश्मन है." Khoche तुम्हें समझ नहीं है, अब हम कह सकते हैं अमरीका का बाप है. One Punjabi joke, how many Punjabis? Oh, thousands. Everywhere you go, the Punjabis are there. Acha, the Punjabis, they kill you with hospitality. एक तो खाना ठूस के खिलाते हैं, दूसरा घर नहीं जाने देते. And at weddings, you'll see fat mama with the whole brood. पुत्र जा चुक ले, सीने दियां बोटियां कोनी कुछ कहता. And only asking, अब पुत्र वे क्या खाना खुल गया है? खाना खुल गया है? Forget दूल्हा दुल्हन every खाना खुले है कि नहीं? अच्छा चुकले माँ दी मुआसत क्यों जे सीने दियां बोटियां चुकले सा. So सीने की बोटीज pile up to the sky. Then the hostess comes and says, हाय कुछ लवो ना, कुछ लिखता ही नहीं तुझे. अच्छा इसी तरह एक आदमी ने ना खा के आपड़ गया. So he goes to the doctor. डॉक्टर साहब कुछ दसो आपड़ गए हैं. So the doctor says, Angika, सुबह एक गोली ते शाम गोली खा ले. गोली दी जगह होंदा मैं बोटी ना चुक लेंदा. गोली दी जगह होंदी बोटी ना चुक लेंदा. मलन वास्ते दी. क्लैपिंग्स करें चलें, बस करें, ओवर ना हो जाए बस. So I have a Chinese character. She's called Susie Bong. आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई छोड़ें, सफेद कमीज में छोड़ें, बंद करें. सेलिब्रिटीज को तो कह सकते हैं, हमारा हक है, दिया ना आपने, है ना, यस बोलें जोर से, बस करें, इतना ना बोलें. So Chinese character Susie Bong. Actually, I don't know why the Chinese always dance to us. Huh? But she's sitting one day. No good, no business, no money, is no funny. Suddenly a customer. Customer. What you want? Face wax. I got very good wax from China. The hair never come back, but the skin also never come back. So one more Chinese. Because Chinese are part of us, right? So this man comes and says, Susie, shave banana hai. This not barber shop. This slimming clinic. I got very good slimming machine from China. So he says, how much? 10,000. Too expensive, I'm going. You cheap man. You very cheap man. You very fat. Very bald. Very ugly. Why you alive? Why don't die? Why don't die? I put you on slow one-way boat to China. Oh. Thank you. Bas. So you remember Mind Your Language? Well, I created something for my show, Bar Bar Bio. A French woman teaching a Punjabi, a Memon, and a Pathan how to speak French. So now we have Mr. Mohammad Bhatti, Milik Frosh, and Barood Khan, and Ghaffar Ghafaria. So the teacher comes in. Bonjour mes étudiants. Today I will study the verb écouter. And we have to conjugate the verb, which means to listen. Écouter. I have listened, you have listened, he has listened. J'ai écouté, tu as écouté, il a écouté, nous avons écouté. Voilà. Monsieur Bhatti? J'ai écouté, oh écouté. Sare écouté de putre. So she says, okay, no, mais non, c'est pas comme ça, non? Okay. Monsieur Bhatti, could you stand up and introduce yourself? So he says, I am Monsieur Bhatti, Milk Frosh, exporter of the finest milk to all of Europe, only 50% water. Okay, Mr. Bhatti, suppose we make a dialogue. If you go take a beautiful girl to Maxime Restaurant in Paris, and you have to use the word manger, which means to eat. You all know, anyone knows French here?
Manger means to eat. So mangez-vous means will you eat. You have to use mangez-vous in a conversation with the girl. But if I take girl to very expensive restaurant, Maxime, I will tell her mangez-vous Pandey. That was very funny. Aiye jutti pher, my nani used to say. Okay, now I'm going to do the Kashmiri one, okay? Juni, listen hard. So that's Bhatt and Bhaggo, and they're always before a TV screen doing tapsara. So I sometimes take them to America and sometimes there. So you remember the case of when the elections took place, Obama and what's his face? So he says, Bhaggo ji, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੋਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਮੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ where are you Mona Raza and other LA people ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਮੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ because we are Democrats so she says ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਮਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਭੱਗੋ ਜੀ what means by this ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ she said ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਲੰਮਸ ਲੰਮਾ ਮੰਨੋ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਤ ਆਂਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਰਸ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮਿੱਟੀ you can clap bas so we are the biggest racist in the world would you agree okay now tell me who was young in the days of Wahid Murad and Zeba be honest own up I know we've all had the botoxes and all this but we are still auntie brigade okay Raju so I was mad about Zeba and I was madly in love with Wahid Murad so I created a funny teleplay which Seema will know Seema was the big inspiration behind me so they meet always bang together बदतमीज कहीं के देख के नहीं चलते देख ही के तो चल रहा हूं एक मामूली वेटर और ये मिजाल वेटर नहीं शब्बो तुम्हारे प्यार का जनरेटर I know it's very cheap dialogue but I mean it's them not me and she says oh you चुगद 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 नहीं शब्बो प्यार की लुगद बंदर बंदर नहीं शब्बो प्यार का समंदर शब्बो उफ अल्लाह और मैं वेटर नहीं मैं मीटर रीडर हूं शब्बो मीटर रीडर और आगे जाके मैं लाइन मैन बनूंगा शब्बो लाइन मैन उफ अल्लाह लाइन मैन हम तो कुछ अल्लाह हम तो कुछ कह भी नहीं सकते बादलों में छुप रहा है चांद क्या लिप्स हैव टू क्विवर ना अपनी हुस्न की जिया से पूछ लो चांदनी पड़ी हुई है मौन I can't do this क्यों it's hand eye precision thank you Thank you, thank you. Thank you. So of course, siyasat must enter everything in Pakistan, including poor Shabbo and Vido. So one day on a date, he is extremely depressed and she says, Vido, तुम देखते नहीं हो हम डैडी से कैसे छुप के आए हैं तुम हो कि गाने नहीं गा रहे दरख्तों के गिर्द नहीं नाच रहे So he says, क्या करूं शब्बो रात भर लोड शेडिंग होती रही शब्बो लोड शेडिंग पसीने में गुड़च मच्छरों ने भून डाला अब मैं कहाँ से वो रोमानी असरात करूं So she says, मैं ऐसे गाना गाऊंगी कि तुम दीवाने हो जाओगे तुम्हारे दिल की आग भड़केगी वीदो So she sings I don't have a tabla but I'll just sing on my आए मौसम वो सीधे पुराने आए मौसम वो सीधे पुराने जिया यही माने तू छुट्टी कर चला जा जालिमा हो Will you say ho with me ho la 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 जब बिजली जाए शाम डले हाँ I can't do this. मेरे दिल में तेरी आग जले मेरे दिल में तेरी आग जले ओ तू मच्छर पसीने क्या जाने जिया यही माने तू छुट्टी कर चला जा जालिमा हो
la 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 la. You are such a good audience. Give it to you. Thank you. Okay, now how many Urdu speaks here? Oh, so many. Hyderabad, Dakhan. Oh, okay, one. And one in the corner there, my brother-in-law. So I have a brand new Hyderabadi, 2 Hyderabadis. आप प्लीज बैठ जाएं वहां पर, खटर पटर बंद करें, नहीं तो आइए जुत्ती. So Hyderabadi women will never believe a word you say. Anything you say, कौन बोला? भाई कौन क्या बोला? मैं बोली. Or they'll say, ऐसा कैसा? ऐसा कैसा? What do you mean ऐसा कैसा? And if nothing, just कौन? अच्छा. So I'll start with this little boy who is a stammerer, and he has to go to the village. So he tells his मामू, मामू मैं जा रहा हूँ खालाम्मा के पास, कोई पैगाम देना उन्हों. हाँ बहुत पैगाम देना उन्हों. बोलो भाई मियाँ का बहुत बुरा हाल होना. बोलो आँखा, दोनों आँखा में मोतिया, नाबिने लाता में चलते नहीं, बिल्कुल बेजुबान बैठे, बाजू नहीं चलता, दांत गल गए, बोलो बाता नहीं होती, आँखा नहीं, बिल्कुल नम है. Now the Hakla is thinking, I can't string one word together, मैं इतना लंबा पैगाम कैसे दूंगा. So he says, मामू बोल दो, इंतकाल हो गया. He says. अच्छा, then मिलाद हुआ, typical मिलाद. हाँ, तो पाशु माँ इन्हों बैठे और ना खास बात करें पाक परवरदिगार से. पाक परवरदिगार, आज मैं खास मिलाद किए हूँ, मेरी मंजली खत्तो नून रिश्ता न को आता. पाक परवरदिगार, मैं दुआ करती डॉक्टर का रिश्ता आ जाए बस. So there's always one Hyderabadi woman waiting to rain on her parade. क्या डॉक्टर मांग रहे? डॉक्टर करेंगा? दीवाने कहते अपनी पुट्टी को देखा है, नाक नक्शा, नाक है पकोड़ा. उन्होंने बोलेगा डॉक्टर मेरे को बादामी आंखें दो, क्या मिलेगा? 2 चिलगोजे. उन्होंने बोलेगा दांत मोती वाले हो, क्या मिलेंगे? खरगोशी. दीवाने कहते डॉक्टर करेगा. हाँ सही बोल रहे पाशु माँ. पाक परवरदिगार, मैं थोड़ी सी दुआ बदल रही, मैं बोलती फकत इंजीनियर हो. पाशु माँ इंजीनियर मांग रहे. दीवाने कहते इंजीनियर करेंगा. उन्होंने देख रहे उम्र क्या है मंजली की? अधेड़ बोलो. रंगत देखी उन्होंने सिया फार्म, करेंगा इंजीनियर. जवानी न को मांगेगा उन्होंने. हो सही बोल रहे. पाक परवरदिगार क्लर्क हो जाए. कम डाउन टू क्लर्क. क्लर्क करेंगा. क्लर्क की उन्होंने नौकरी के जितना उनका मिलता है पैसा, उन्होंने खा सकते मोटे फप्पस. दीवाने कहते पाक परवरदिगार, मैं कैंसिल कर रही सारी दुआएं, बस खाकसारों की खैर करो. उन्होंने खाकसार मर गए 1947 में, उन्होंने की दुआ कर रहे. पाक परवरदिगार उनकी मगफरत बस कर दो. थैंक यू. जे गिव मी अ थम्स अप. So now we are back to my 2 Urdu speaking characters. One is Mustaqim Dhobi, who's from Karachi, and he's always asking for advance. And his line is Dogi. Kya? Advance. And he always has a reason. So one day he comes and he says, Dogi advance. अरे क्या अगले दिन तो दिया है? हो गया ना सानिया. क्या हुआ सानिया? जा रहा था नदी पे, गुनगुनाता हुआ चले जा रहा था नदी पे हस्बे आदत. इतने में ना क्या हुआ ना, एंक के गुंडे आ. कान से बस करें. जा रहा, कहीं मुझे बॉडी बैग में ना डाल दे कोई. हाँ, अरे यहाँ से लिख लूंगा तो बॉडी बैग में ना निकल जाओ. हैं, तो जा रहा था मैं नदी पे, गुनगुनाता हूँ हस्बे आदत. अरे नदी का है, गंदा नाला है. तुम्हारे लिए होगा गंदा नाला, हमारे लिए तो सुहानी नेर है जिसमें अल्लाह का पानी तैरता चला जा रहेगा. तो क्या हुआ? जा रहा था ना, इतने में ना 3 ना एक के गुंडे आ गए.
अरे एक आया ना उन्हें दो गूजा लगा दिया, अरे दूसरा हुआ से आया दो गूजा लगा दिया, अरे तीनों गूजे पे गूजा लगाए चले जा रहे हैं, लगाए चले जा रहे हैं, लगाए चले। कहा साले क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ज्यादा बोलोगे ना बोरी में डाल दूंगा। कि तुम हो कौन, तुम्हें क्यों बोरी में डालेंगे? जेब काट ली ना, एडवांस निकाल लिया, दोगी क्या? एडवांस। क्लैप करें चले। वन मोर मुस्तकीम। मुस्तकीम, मेरा गुलाबी जोड़ा कहाँ है? हो गया ना सानेहा। There's always a सानेहा। क्या हो गया तुम्हारा सानेहा? जा रहा था ना हंसबे आ रहा, नदी पे गुनगुना रहा, चला जा रहा था नदी पे, गटरी सर पे आएगी थी, सबसे ऊपर तुम्हारा गुलाबी जोड़ा आएगा था, ऊपर से आ गई चील, चील ने नो डाइव मारी, चोंच में तुम्हारा गुलाबी जोड़ा लिया, ले उड़ी। I mean, what a story। अरे हम चीखते रह गए, चील चील। Ridiculous। अरे चील ने हमारी एक ना सुनी, आए मैं बैठ गया नदी में ना, टसुए बहाने लगा, टसुए। By the way, this voice hurts me, okay? So I can't do Mustaqim for long। टसुए बहाने लगा, टसुए, नदी नमकीन हो गई। तो ये हुआ सानिया। दोगी क्या? एडवांस। One last Mustaqim। Urdu speaks, you want to hear Mustaqim one more time? Because whenever I do Urdu speaks, then the Punjabis are, "ऐ की गालो हो रही है." Then when I do Punjabi, अरे ना जाने क्या बातें ये कर रहे हैं इसका। अच्छा, the Urdu speaks are like the French of the East, you know. They love to say, अरे हमारे यहाँ ऐसे होता है, अरे वो जो बहू आई है ना पंजाबी, अरे सोचो जरा, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। They go into paroxysm over the chutney, huh? My husband is Urdu speaks oil। अरे वो जो लहसुन की चटनी, अरे सुनो ब्लेंडर में पीस रही है। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे, अरे हमारे यहाँ तो ऐसे, गुनाह है गुनाह, हम तो सिलबट्टे में पीसते हैं। आई ऐसे ले करके ना, साबुत साबुत सिलबट्टे नू करके निकलती, मक्खन में तलती है। अरे ये तो पता नहीं ना जाने कौन सा वेजिटेबल ऑयल में इतना तल लेते हैं पंजाबी लोग, पता नहीं क्या है। अरे सलाम किया। When I first got married, I said, अस्सलाम वालेकुम जी, कीमा। अरे बिटिया कीमा। So again, shamelessly, I said कीमा। अरे कीमा। So then I said, इसी तरह ना, जिस तरह मुस्तकिल कै हो रही, मुस्तकिल कै हो रही। So anyway, it's always हमारे यहाँ ऐसे होता है और हमारे यहाँ ऐसे होता है। So I created these two, you know, Masla Wagarara and the Chutiya with the two ribbons. They're dying breed, like Arche Munir. So she has a friend called, she's Gasitan, and she has a friend called Ajiran. So she's telling her, Are Ajiran, she has a ne'er-do-well son called Punnan Mia. Huh? अरे अजीरन, पुन्नन मियाँ हमें कह रहे थे कि चलो अम्मा तुम्हें ले चलते हैं फैशन वीक। आए हमने कहा चलो हम भी जाकर के देखते हैं ये फैशन वीक है क्या भला। आए अरे हुआ गए तो इस कदर लंबी टेबल लगी हुई, हमने कहा ना जाने कितने कोरमो बिरयानियों की आमद है। अरे अरमानों पे ओश, देखते क्या है ये सैकड़ों कमीनियां चली आ रही हैं टेबल पे। आए अरे किसी ने वो जीन पैंट पहनी हुई, किसी ने चड्डी फिराक पहना हुआ। अरे हमने दिल में कहा बेटिया चड्डी फिराक मत पहनो, अरे जो गोरियां पहनती हैं उनकी लातें मोटी मोटी गोरी गोरी गेले होती हैं। अरे तुम्हारे तो दांत खिलाल लाते ऊपर से सिया फाम। अरे काय को पहन रही हो ये चड्डी फिराक? और पैंटों को जब देखा, पैंट यहाँ टखनों तक जा रही, दूसरी आई तो घुटनों तक जा रही, तीसरी कूलों तक चली आ रही है। अरे उरियानियत और फहाशी के मुजस्मे, माल मटोला कहीं हुआ से निकल रहा कहीं हुआ से, अरे बैकलेस और फ्रंटलेस चली आ रही है। अरे हमारे जमाने में भी फैशन होता था, फर्शी गरारे होते थे, मोना तुम्हें तो पता ही है? वहाँ पर दुपट्टों पे दुपट्टे टकरे होते थे, किरण टाकरे होते थे। अरे हमारे मिर्जा शाह मरहूम अल्लाह बख्शे कहते थे, अरे घस्सो जरा चिलमन से लहरा जाओ।
अरे क्या हमारा ड्योढ़ी में उनका इंतजार फरमाना, उनका पीछे से आना दबे पाँव और कहना कि बूझो कौन। फिर हमारी चोटी में गेंदे का फूल गूंदना। अरे शेनील साटन वेलवेट में लिचड़े पड़े हुए होते थे हम, हैं? और गुलमान, एक दबाने के लिए, एक खो जाने के लिए, गज के हर काम के लिए गलमान ही गलमान होते थे। अब जब देखो एक वो मासी है टेलीफोन पे लगी हुई हैगी। अरे अब तो ज़माना वो नहीं हैगा। घसीटन कह रही है कि अब हमें ले चलो उस ज़माने में जहाँ मिर्ज़ा साहब मरहूम अल्लाह बख्शे हमारे आशिक थे। तालियां बजा लीजिए आप। Who loved घसीटन? Hands up. I'm going to give you one more Mehman joke. Yes? Yeah? Sorry? हैं? सिंधीज़ का मैंने एक बड़ा प्यारा गाना म्यूटिलेट किया था, मोड़ तोड़ टिल्ले राणा। ये गाना मैंने म्यूटिलेट किया और उसको डेडिकेट किया टू आंटीज, द HRT ब्रिगेड, द हार्ट फ्लैशर्स। उसमें है जोड़ जोड़ हिले राणा, जोड़ जोड़ हिले, जोड़ जोड़ हिले राणा, जोड़ जोड़ हिले, तेरे गोडे गिट्टे हिलण ते हड्डे बोटे हिलण, हो राणा राणा मोड़ भले दो टिल्ले गुजरे जो, जोड़ जोड़ हिले राणा, जोड़ जोड़ हिले, अखी खिचावण सवडई अल्लाह लगे राणा, अखी खिचावड़ी नहीं अल्लाह लगे राणा, हो राणा तुम खिच थींदा राणा तो पुट थींदा, राणा तुम खिच थींदा राणा तुम पुट थींदा, ओ सोटा अखी जे खिचे सोटा बुल्लन जे पुटे, हो राणा राणा मोर भले दो टिल्ले गुजरे जो, जोड़ जोड़ हिले राणा, जोड़ जोड़। थैंक यू। Thank you. I think my time is up. आप चाहें तो बैगिंग्स कर सकते हैं ना, बैगिंग्स करें। I'm going to do one or two Mehman jokes. This time is up, right? I've lost count. Yeah. Oh no, Pinocchio, your nose is growing. Okay, one more Mehman joke. So, Rajak Bhai is drowning. He and one Urdu speaking and one Pathan, they are all drowning. But he's laughing. So the Punjabi says to him, "तू पागल ते नहीं हो गया? ऐसे डुबन लगे हैं ते तू कह के लगा रहे हैं, हंसे चले जा रहे हैं, की हो गया तेनू?" And the Pathan says, "खोचे खाना खराब खंजीर का बच्चा, यहाँ मौत का फरिश्ता आ रहा, तुम हंसे चला जा रहा है। ये देखो तुमने रिटर्न टिकट लिया, हमने वन वे लिया था." Okay, there are four men in a boat: an American, a Brit, a Frenchman, a man from Dubai, and a Pakistani. So the boat starts to sink. So the captain says, "Throw out whatever you don't need." There's a Glaswegian, a French guy, and Dubai and Pakistani. So the Scottish guy says, "I can throw, I've got a lot of whiskey in my country, I can throw out all the whiskey. I don't need it because in Scotland there's a lot of whiskey new." So he takes out all, and "I'm throwing it out now, I don't need it. Aren't you impressed? I do a Glaswegian." Yes, yes. I'm only showing off. So then the Frenchman says, "I have a lot of wine in my country, I can throw that out." So he throws it out. Then the Dubaian picks up the Pakistani and throws it. "Wallah lazim, we have enough of that in our country," he says. So a married man propositions an American woman, a British woman, and a Pakistani. So the American says, "Dude, you're married, like loser, get a life." And the British woman says, "No, I'm afraid not, wouldn't be right, you're married." And the Pakistani says, "Hai hai, aise na kare, aaste bole, koi dekh lega." Okay, this is the end now, I'm going. What? Another Mehman one. Another. There's a Mehman speaking there. Okay. You know, when I do it in Los Angeles, Mrs. Adaya always check. "Eh, mere ko tu pehle suna."
मैं ओके करती तो तू करती, और नहीं तो नहीं करती. Her favorite one was Rajak Bhai falls from the 10th floor and he is going to die. So as he passes the 9th floor, Jubeda is cooking chapati. He says, "ए मेरी चपाती नहीं बनाना." Thank you. Okay, now Jubeda falls ill. Huh? Now he's not getting the doctor to the, "ए डॉक्टर को तो फीस देनी पड़ेगी ना, तो आती का खाता तो कम है ना." Then finally when she's very ill, he say, "ए ऑफ हो गई ना जुबेदा, तो इसकी माँ ने मेरा गला दबा देना, अब तो मेरे को लाना पड़ेगा डॉक्टर." So he goes to her and he says, "ए जुबेदा, तू सुन, मैं तेरे वास्ते डॉक्टर लेने जा रहा हूँ. अगर मेरे पीछे तेरे को लगा तू ऑफ होने लगी है, तेरे को महसूस हुआ कि तू ऑफ होने लगी है, तो जोर से आवाज लगा, गोश्त पाक." ऐसा कर, गोश्त पाक करके आवाज लगा, सांस ऐसा भर के ना आगे बढ़ के हू करके मोमबत्ती बुझा दे. सो नाउ शी इज तड़फोइंग. ए जुबेदा देख, बुरे मानने की नहीं हो रही, तेरे को पता है ना महंगाई का जमाना है, मोमबत्ती की भी अपनी जगह. One last Mehman one, one more Mehman one. He's grumbling to Jubeda. "ए जुबेदा, ए देख, आती का खाता कुछ भी नहीं तो जाती का खाता है. मेरे पास रुपल्ली, आती नहीं तो जाती. ए जाती जाती काई को रहता, आती कोई. ये तेरे को डिप्रेशन हो रहा है, तू शरबत पी, मोजे उतार, सो जा." So he takes off his socks. She says, "ए रजाक, तेरे मोजों में से बास आती है." ए जुबेदा, शुक्र कर, आती है ना, जाती तो नहीं है. Thank you very, very much.